Hari Om. We saw how the Bhagavad Gita is actually a universal text and a Moksha Shastra, not a Dharma Shastra. So it acts as like a spring of water which has been nourishing, and it has been enriching our spiritual lives for centuries together. And therefore it need not be taken superficially as simply. The Gita may not simply be taken as a dialogue between a charioteer and a warrior, and one is trying to persuade him to get into war. No, that's a very superficial view. This is a Moksha Shastra, which means that Shastra that is meant to give us ultimate liberation, salvation, nirvana, moksha. That is the very purpose of Bhagavad Gita. And what is its message? Well, the message is that we are caught in this world out of our raga and dvesha, attractions and aversions, sukha and dukkha. These are the ways in which we tie ourselves to an asat world, an unreal world, to the false part of the universe. The falsity is what we are yoked to, tied to. What are the things which tie us down to this world of fleeting sukhas and recurring dukkhas? Dukkhas will keep recurring. No matter how much we try to avoid it and keep believing and praying to God, so-called God up there, that please keep me away from all the dukkhas. Oh, no. That is the part of Prakriti. What keeps us tied? Our own bhoga vritti. Three things keep us tied down to this world of sukha dukkha. Our own bhoga vritti. Bhoga vritti meaning I want instant gratification from my senses, and my senses are going to attach to all the beautiful attractive objects of the world, sight, sound, rang, roop, ras, gandha, and I demand instant gratification and happiness from my senses. That is my bhoga vritti, my tendency for bhoga. Okay, so that is what is tying me down to the sansar. And yes, that is one of the things. And therefore we say, oh, I am also learning Adhyatma, I also study Gita. Yes, but that is not the focus of our lives. That is just by the way. It is sometimes a casual inquiry and sometimes just an idle kind of a pastime for many of us. Is it a passion? Is it a burning inquiry as to I have seen everything that I needed to see, I have experienced everything that I needed to experience. This world has nothing new, yes, it has many more things but nothing new to give me, and now I need to know the ultimate truth about myself. Who am I and who is Paramatma? That burning question is the only thing that will get me out of this bhoga vritti. And secondly, I also have a sangraha vritti. What is sangraha vritti? That is that all the pleasures that I have gathered from the world, now I want to collect them, accumulate them and keep them with me and make sure that they remain with me. So holding on to all our pleasures. Sangraha vritti, this is our tendency. And the third thing that keeps us tied to the sansar is our own agyan. But how can agyan be defined? Agyan simply defined is not knowing how my bhoga vritti and sangraha vritti is tying me down to my own karma bandhan. Karma bandhan meaning, it simply means that every karma that I do, every unfulfilled desire that I hold in my heart, I am going to come again and again, punarapi jananam, punarapi maranam, again and again in many lives in order to fulfill those vrittis of bhog. And therefore, who is tying me down? My own karma bandhan. Who is creating the karma bandhan? My own vritti of bhog, instant gratification. I want this and that. And therefore the suffering. That's all. Simple logic. Therefore the suffering. Now this is also been termed, this whole thing has also been termed as the Arjun disease. And we all suffer from this Arjun disease of bhoga vritti and sangraha vritti and a basic agyan of what is the nature of my true self
एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड व्हाट इज बाइंडिंग मी. कर्म बंधन कौन क्रिएट कर रहा है? माई ओन अज्ञान. ओके, सो नाउ भगवान हैज ऑलरेडी सेड इन द सेकेंड चैप्टर that you can know your nature, and your true nature actually resides in your deha. It's actually not in deha, but it's a simplistic way of saying कि देह में देही है. देही कौन? वो सोल, वो जो इंडिस्ट्रक्टेबल है. देही नित्यम अवध्योयम, वो अनित्य है. देहे सर्वस्य भारत, वो हरेक के देह में है. सर्वस्य, सबके देह में है. तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि. तो अगर वही कॉन्शियसनेस सब में है और हमेशा है और अनित्य है और इंडिस्ट्रक्टेबल है, हमेशा रहेगा, तो आपको शोक किस बात का है? शोक इस बात का है कि हम इस छोटे से देह, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी मन और उसकी बुद्धि में अटैच होकर कहते हैं कि अब मुझे इसी छोटे से बंडल के लिए, देह मन बुद्धि के लिए, मुझे अपने सेल्फिश भोग के लिए सब कुछ चाहिए. जो कुछ भी हो रहा है संसार में, पहले मेरा सेल्फिश भोग हो जाए, उसके बाद हम दान वगैरह करेंगे या दूसरों के बारे में सोचेंगे. मुझे इन चीजों से अट्रैक्शन है, राग. इस बंडल को राग है, द्वेष है और भोग वृत्ति है, सेल्फिशनेस है, इसलिए सकाम कर्म है. ओके, सो भगवान से न त्वं शोचितुम् अर्हसि अर्जुन, यू आर इटर्नल. सेकेंड चैप्टर में कहा था, why are you tying yourself to temporary things? You are creating your own bondage. You're creating your own formula for sorrow. And then you're saying, मुझे क्यों दुख हो रहा है? You are tying yourself to temporary things. So, you're caught in the jagat. Why can't you see the larger picture? The larger picture is that there is some reality, some entity, some all-pervasive reality which is holding everything together, the universe and me and everybody else. So the subject of the 10th chapter, which we are going to study today, is actually what is the nature of that Param, of that Supreme, that Absolute, that reality, that only Sat. Everything else is a Sat, temporary. What is the nature that we are going to see in chapter 10. But before that, again there is a caveat. The caveat is that in order to see the picture clearly, you have to draw back from it a little bit. जैसे कि कोई आर्टिस्ट पेंट करता है कैनवस में, तो ये पूरी पेंटिंग कैसे दिख रही है और पूरी तरह से कैसी दिखेगी, वो दूर हटता जाता है, थोड़ा दूर 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 होके फिर यूं देखता है कि अच्छा अब मुझे पता चल गया कि इसमें पूर्णता क्या है. वी आर सो क्लोज, इतने करीब से हम एंट्वाइन हो गए हैं जिंदगी में कि मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी चीजें, मेरा पोजेशंस, एक्विजिशंस एंड माय मान एंड अपमान एंड सक्सेस एंड फेलियर, कि हम उस तस्वीर के बहुत करीब खड़े हुए हैं. और इतने करीब होने पर आपको जैसे पिक्सेलेटेड दिखेगी, यानी कि आप कोई डिजिटल पिक्चर अगर उसको एक्सपैंड करें और एकदम करीब से देखें, तो डिजिटल पिक्चर में भी पिक्सल्स, खाली पिक्सल्स दिखाई देंगे. दैट इज डॉट्स, इंडिविजुअल छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, छोटी छोटी सुख और छोटे छोटे दुख हमारी जिंदगी के. आज ये हो जाए, आज उस रिलेटिव ने वो कह दिया, आज हमारे बॉस ने ऐसा कर दिया, अब मुझे इतना थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, अब मैं इन्वेस्टमेंट इतना कर लूँ. ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं जिंदगी के. लेकिन भगवान कहते हैं, इफ यू वांट टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू हैव टू ऑल्सो डू सम एफर्ट. मैं ऐसे यूं ही नहीं आ जाऊंगा हर एक की जिंदगी में. मुझे आपको ये चाहिए कि आप इस स्क्रीन, इस पेंटिंग, इस संसार से थोड़ी दूरी रखें. स्टेप बैक फ्रॉम इट. द मोमेंट यू स्टेप बैक फ्रॉम इट, यू हैव द लार्जर पिक्चर. यू कैन सी कि अरे मेरी जिंदगी तो बस डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ तक की नहीं है. मैं तो इटर्नल हूँ, मैं तो पहले भी था और आगे भी रहूंगा. तो the big picture starts emerging. The larger picture of your eternal existence is needed first. भगवान को समझने से भी पहले. तो जो इवॉल्व्ड माइंड्स होते हैं ना, जो इवॉल्व्ड माइंड्स होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अच्छा हमें दिख रहा है कि ये एक अपीयरेंस है, एक व्यक्ति है,
उसका ऐसा पहनावा है और उसकी ऐसी शक्ल है और उसके फला फला औधा है, स्टेटस है, लेकिन इन सब के पीछे ये है कौन? एन इवॉल्व्ड माइंड सेज ये कौन है, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा हो। और जो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक दिमाग होता है, वो इस संसार में, संसार के सुखों में बस संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। सो materialistic mind will never look beyond the material, and an evolved mind will say, I want to know who is that entity behind all this. तो हमने जैसा थोड़ा सा डिस्टेंस किया, हमने देखा कि अरे ये दुनिया तो सिर्फ ऑब्जेक्ट से भरी हुई है, एक्सपीरियंसेस से, पीपल से भरी हुई है, और इन सब का कांटेक्ट कौन करता है? मेरे सेंसेस करते हैं, मेरी इंद्रियां करती हैं, और ये इंद्रियां तो एकदम ही टेम्पररी हैं, जैसे कि संसार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, चैप्टर 2, शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्याः, सभी तो आने जाने की चीजें हैं, सभी तो अनित्य हैं। दिस टू शैल पास, ताम तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तुमको तितिक्षा रखना है, इन सब में नहीं बहना है, तितिक्षा रखना है। और इस तितिक्षा का जब मूड आ जाता है ना, तितिक्षा यानी फॉरबेरेंस, लेट इट ऑल फ्लो। मैं तो रिवर के शोर पर खड़ा हूँ, मैं तो तट पर खड़ा हो गया हूँ और नदी की प्रवाह को देख रहा हूँ, संसार को जस्ट आते जाते देख रहा हूँ। जब ऐसा भाव हो जाए, देन यू लेट लाइफ जस्ट फ्लो एंड लेट इट पास। इसको कहते हैं तितिक्षा। भगवान कहते हैं ताम तितिक्षस्व, हे भारत, तुमको ये तितिक्षा रखनी है। ओनली देन यू कैन नो द हाईएस्ट ट्रूथ। इफ योर माइंड इज फुल ऑफ अशांति, अशांतस्य कुतः सुखम, न तो सुख मिलेगा न परमात्मा मिलेगा। तो ये हुई इसके बैकग्राउंड की भूमिका। लेकिन ये हमें कब दिखेगा? मैं हूं कहाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूं कहाँ? तुम हमेशा पूछते हो मैं कहाँ हूं। तो 9th चैप्टर जहां हमने खत्म किया था, वहां कहा गया था, मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। मत्स्थानि, मैं तो सर्वभूतानि, हर एक इंसान में हूँ। सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, दिस एंटायर वर्ल्ड इज परवेडेड ओनली बाय मी। सोचिए जरा, अगर कॉन्शियसनेस, दैट साइंस आजकल उसको कहता है एनर्जी फील्ड, उन्होंने भी डिस्कवर किया है कि अगर हम सभी एटम्स और सभी मॉलिक्यूल्स, हर एक ऑब्जेक्ट्स के को डाइसेक्ट करते करते उसके स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल तक पहुंचे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, क्वार्क हो, उसके अंदर पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि वो कोई सॉलिड चीज हमको मिलती ही नहीं है। एवरीथिंग इज एट द फाउंडेशन लेवल जस्ट एनर्जी, just energy. That energy field is pervading the entire universe, from the cosmos right down to the cell of your body. तो he saying maya tadamidam sarvam, मैं तो हर जगह हूँ, I pervade everything. तुम मुझे ढूंढ कहाँ रहे हो? But I am not manifest, यानी कि तुम मुझे, एनर्जी फील्ड है दैट कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, तुम ऐसे नहीं पहचान सकते हो थ्रू योर ग्रॉस सेंसेस, क्योंकि आपके सेंसेस बहुत ग्रॉस है। ऑल द बीइंग्स एग्जिस्ट इन मी। ऑल राइट, तो दैट्स व्हाई ही हैज सेड, कृष्णा हैज सेड, आई एम अत्र तत्र सर्वत्र, but of course you cannot recognize me because your mind is so much into gross objects, solid objects, experiences, people, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन सब में मन विचर रहा है, एकदम ग्रोस चीजों में। तो सटल यानी सूक्ष्म ज्ञान कैसे पहचानोगे? therefore कुछ तो एक फाउंडेशन है जो इस पूरे यूनिवर्स को, इस एंटायर यूनिवर्स का को धरे हुए है। धार्यते जगत, ये कौन है धरने वाला? कोई तो होगा मुझे संभालने वाला, क्योंकि इतनी बेकरारी में भी मैं बरकरार हूं। सो यू कैनॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सम हायर पावर, कॉल इट गॉड, भगवान, अल्लाह, डजंट मैटर। यू कैनॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस which holds everything together. Now that power is what we are going to talk about in chapter
10. So, chapter 10 is the chapter of divine glories. Divine glories of God, unki vibhuti. Vibhuti yogaha is the name of the chapter. Dashamodhyayah vibhuti yogaha Shri Paramatmane Namaha. भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. Now, Arjun, now that you can listen to my supreme words, because Priyamanaya, you have already delighted in my words so far. जो भी आपने सुना है कृष्ण से इतने वर्सेस में, इतने श्लोकों में, इतने दिनों से, आप उसमें डिलाइट करने लगे हैं. You have started delighting in it, Priyamanaya, and therefore you have the mental readiness to listen to me. Priyamanaya, इसलिए मैं हितकाम्यया, I am going to explain my nature, my true nature, हितकाम्यया, because I desire your welfare. भगवान भी अब हमारे लेवल पर आ गए और बोले, I really care for you. अगर आप इस दुनिया में मेटीरियलिस्टिक, कंज्यूमरिस्टिक लाइफ जी के बस निकल गए तो एक लाइफ तो व्यर्थ हो गई ना. But I care for you, Krishna says, हितकाम्यया, and therefore I am going to explain the highest truths to you. Not for your entertainment, but for your welfare. Mahabaho, he's called him Mahabaho. It means, yes, I know that Arjun is a great warrior, but here it means Mahabaho, Arjun, you are a great warrior in physical warfare. अब थोड़ा spiritual strength भी दिखाओ. You need spiritual strength, and he is addressing all of us, not only Arjun, because we put in so much of Herculean efforts into achieving this and that, and careers which are marvelous careers and high positions and wealth, and कितना तपस, कितना effort हमने डाला होगा, लेकिन उसमें कोई spiritual strength नहीं दिखाती. So भगवान is using the word Mahabaho in a different sense, and now he is saying Shrunu, listen now, because now you have opened the doors to understanding. And therefore Krishna is happy to elaborate, and he is going to elaborate soon. So as we go on, let's see what Krishna has to reveal in chapter 10, verse number 2. Name viduh suraganaha prabhavam na maharshayaha ahamardirhi devanam maharshinam cha sarvashaha. This is a allegorical reference. It means that it is a symbolic representation of some figures which are fictitious, like 7 rishis. The Saptarishi, हमने नाम तो सुना है Saptarishi, लेकिन ये direct reference नहीं है. It is a analogy, an allegory, which means ये Saptarishi जो है ना, ये भी मुझे कभी नहीं पहचान सके. नमे विदुः सुरगणाः, नमे विदुः, मुझे पहचान ही नहीं पाए. लेकिन ये सप्तऋषि है कौन? It is a representation of our 5 senses plus intellect plus ego. कितने हुए? 7. तो it's just an indirect reference to say कि हे महाबाहो, तुम इस 5 इंद्रियों से, एक बुद्धि से और अपने अहम, एक ईगो से तुम मुझे पहचानना चाहते हो? ओह सॉरी, नमे विदुः सुरगणा. You will not be able to recognize me through these gross mediums of तो सप्तऋषि उस सेंस में यूज किया गया है. And therefore I am that hidden conscious principle. I am consciousness. I am everywhere. In fact, I am the one who is powering that इंद्रियां. यानी कि मुझे कान है, नाक है, आंखें हैं, लेकिन ये तो जड़ वस्तु है. ये तो केवल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जड़ हैं. इनमें देखने की, सुनने की वो शक्ति, वो पावर, वो कहाँ से आती है? That conscious principle is me. But I am hidden. I am hidden in one sense because you are not looking beyond your senses, beyond your indriya, beyond the buddhi. मुझे बुद्धि से भगवान पहचानना है. Saying no, I am that hidden principle. तो because all these indriyas
द सप्तऋषि एज यू मे कॉल इट इज आउटवर्ड फेसिंग, संसार को सिर्फ बाहर बाहर से देख रहे हैं. सो इट्स लाइक सेइंग कि एक टॉर्च है और वो टॉर्च की रोशनी बाहर की तरफ दिखा रही है. एक दिन टॉर्च कहती है ये मुझे पहचानना है कि मैं जलता कैसे हूँ. रोशनी से हमको बाहर की दुनिया तो दिख रही है, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, पीपल दिख रहे हैं, सिचुएशंस और बहुत अच्छे अच्छे सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस, लेकिन इनको जलाने वाला कौन है. तो वो मुड़ के देखती है तो पहचानती है कि अरे ये तो बैटरी से है. लेकिन जब तक इंद्रियां बाहर देख रही हैं, द लाइट इज फेसिंग आउटवर्ड, इट कैनॉट इवन सी इट्स ओन बैटरी. ये एग्जाम्पल कई बार हम लोगों के गुरुओं ने दिया है कि अ टॉर्च कैन नेवर सी इट्स ओन बैटरी, क्योंकि वो उसकी रोशनी हमेशा बाहर देख रही है. व्यक्ति को, वस्तु, परिस्थिति, सिचुएशंस, सक्सेस एंड फेलियर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अरे बाहर ही बाहर एक्सट्रोवर्टेड है. तो भगवान कहते हैं नाउ दैट एनर्जी फील्ड, दैट बैटरी, लेट्स कॉल इट, दैट एनर्जी फील्ड विच इज पावरिंग ऑल ऑफ यू, उसको तो पहचानना जरूरी है. क्योंकि उसको पहचाने बिना अगर हम इस दुनिया से निकल गए तो फिर हमने क्या किया? कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ ऐसे ही जी के निकल गए. तो यानी कि खाया पिया सोया, जस्ट लाइक द एनिमल्स. And I have left this world with no legacy of spiritual understanding or spiritual growth. So verse number 3, भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, मैं बताना शुरू करूंगा. ओके. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. Those who know me, those who know the real me, they actually will get liberated from clinging to this sansar. Can we even know that principle of life? So he says, I am the absolute. I am unborn, which means I am beginningless. So हम कब और कैसे कह सकते हैं कि consciousness, जिस अवेयरनेस की वजह से हम अपने देह को पहचानते हैं, दुनिया को पहचानते हैं, अपने मन को पहचानते हैं, अपनी इंद्रियों को पहचानते हैं और अपने मन में चलने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो शक्ति कब पैदा हुई? इट इज बिगिनिंगलेस. भगवान सेज इट हैज नो बिगिनिंग. अगर कोई चीज की बिगिनिंग होती है, if anything is born, logically it has to die. But I am Ananta. I cannot die, which means that anything that is beginningless is endless. Anything which is born has to die. It's a simple logic of the universe. So Bhagavan says, I am Ajam. Everything that has birth will have death. But I am not. I am Ajam. I have no birth. I am Anadi. That means I am eternal. I am Loka Maheshwaram. That's the word he has used in the first line, last word. Loka Maheshwaram, Lord of the worlds. Lord of the worlds yani everything in our physical world, mental world and in our intellectual world. सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हम खुद पहचान लेते हैं कि अरे मेरे मन में ये हो रहा है या मेरे बुद्धि में ये हो रहा है. कैसे? Who is that experiencer? Who is the recognizer? वो तो कोई और होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं एक थॉट स्वयं को कैसे पहचान सकती है? हाउ कैन अ जड़ ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज इटसेल्फ? यू नीड अ सेंटिएंट बीइंग, यू नीड अ nitya vastu to see something that is anitya. So the physical, mental and intellectual world is seen. I am the Loka Maheshwara of all that. So actually what it means is that the entire world, the science is also discovering now, is only and only, बाहर से solid दिखता होगा लेकिन आप उसको dissect करते 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 you go to the smallest possible particle and you find
that it is nothing but pulsating energy. यानी कि उसके न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हर एटम के इर्द गिर्द केवल और केवल घूमते रहते हैं. हमारे बॉडी में भी अभी हर एटम के इर्द गिर्द केवल और केवल एटम्स, न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स घूम रहे हैं. इट्स ओनली एनर्जी. और उसका पाथ भी फिक्स नहीं है. इट्स रैंडम. सो इट्स ओनली एनर्जी. वी आर ओनली एनर्जी and the whole world is pulsating with that energy. And yet I am aware of my body. I am aware, oh this is me, oh this is the world, oh ये मेरा घर है, oh अच्छा I want to understand something about philosophy. ये religion क्या होता है, why does man get into conflict. ये questions मेरी बुद्धि करने लगती है. But everything is changing. Politics and sociology and religions and warfare and of course मेरी गाड़ी और मकान और फैमिली, एवरीथिंग इज चेंजिंग. लेकिन उसको देखने वाला, पहचानने वाला तो अनचेंजिंग होना चाहिए. अगर वो भी चेंजिंग होता तो वो चेंजिंग को कैसे पहचानता. इट्स लाइक सेइंग दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन रोलर कोस्टर एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ पेंटिंग. तो जो चेंजिंग और हिलती हुई चीज है वो अनचेंजिंग को कभी नहीं पहचान सकती. विच मीन्स आई एम अनचेंजिंग. आई एम सम तत्व विच कैन रिकग्नाइज ऑल द चेंज अराउंड मी. आई कैन सी ओ दिस हैज चेंज्ड. तो अनचेंजिंग होगा जो तत्व उसको पहचान रहा है. एंड देयरफॉर आई एम, दैट मीन्स भगवान इज चेंजलेस. एंड दैट तत्व इज आई एम रिकग्नाइजिंग थ्रू माई ओन अवेयरनेस. मैं खुद अवेयर हूं अपने इर्द गिर्द होने वाले चेंजेस का. तो मैं उस अवेयरनेस से उस चेंजलेस तक पहुंचा हुआ हूं ऑलरेडी. दैट मीन्स आई एम दैट अवेयरनेस विच रिकग्नाइजेस एवरीथिंग अराउंड मी एंड दैट विच रीचेस दैट चेंजलेस कॉन्शियस प्रिंसिपल विच इज परमात्मा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा? That is the whole philosophy of Advaita. Advaita means non-duality. There is no duality. कि मैं तो एक छोटा सा दयनीय बेचारा कर्पण्य कृपण एक दयनीय वस्तु, एक इंसान हूँ, और हे भगवान आप एक बहुत बड़े शक्ति है जो एक सुल्तान है कहीं जो मुझे पनिश करेंगे. ये तो डुअलिटी हो गई. There is no two. That is a Dvaita philosophy. And we are not subscribing to the Dvaita philosophy of me and you. How can there be my awareness and your awareness? Awareness is awareness. Electricity is electricity. It is only powering different things like fan and my Wi-Fi and my phone and my bulb. But electricity cannot be dual. अद्वैत philosophy यही कहता है आप, हमारा awareness जो आत्मा है वही तो परमात्मा है. I am just a device like a mobile phone or like a fan. वो device चल रहा है किससे? Electricity से. So therefore we can say that Advaita philosophy propounds the fact that I am in my true nature, मेरा असली स्वभाव changeless है. I am pure consciousness. I am they, he. I am not they, her, the body. And तो इससे हमको याद आया कि बहुत दिनों पहले दो बच्चे एक तालाब किनारे पानी में पैर लटका के बैठे थे और आनंद ले रहे थे ठंडे ठंडे ब्यूटीफुल पानी का. और एक ने दूसरे से कहा, ओ हाउ लवली इज एंड कूल एंड रिफ्रेशिंग इज दिस वाटर. हाउ लवली एंड कूल एंड रिफ्रेशिंग इज दिस वाटर. वहां से एक मछली गुजर रही थी उनके पैर के पास से और उसने सुना, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस वाटर, हाउ रिफ्रेशिंग एंड नरिशिंग. ये वाटर क्या है? वो मछली के दिमाग में आ गया कि ये वाटर है क्या. एंड इट वेंट रनिंग टू इट्स मम्मी एंड डैडी एंड सेड, ये वाटर क्या है? मैंने सुना है वो दो लड़के वहां बैठे थे एंड दे वर इन सच अ स्टेट ऑफ आनंद एंड ब्लिस एंड दे सेड कि वाटर है. अब मुझे बताओ वाटर क्या है. अब उनके मम्मी पापा हम आप जैसे थे जिन्होंने न तो स्क्रिप्चर पढ़ा था और न आध्यात्म पढ़ा था. तो उन्होंने कहा, भाई
ये वाटर का डेफिनेशन तो हमको नहीं मालूम, आई रियली डोंट नो, सॉरी, बट तुम एक काम कर सकती हो। उन्होंने मछली से बोला कि ये छोटे से तालाब से निकल के तुम क्यों नहीं नदी में चली जाती, हो सकता है नदी में इसका उत्तर मिल जाए। सो द फिश, स्मॉल फिश, जिसको एकदम तलब लग गई थी, तृष्णा लग गई थी कि मुझे ये ज्ञान चाहिए, आई रियली वांट इट, तो उसने तपस्या की और तपस्या से वो पहुंच गई एक नदी में। नदी में घूमते घूमते उसने कई सारी फिशेस, मछलियों से पूछा। सबने कहा कि भाई हमने सुना है, हाँ आप जो कह रहे हैं सत्य है, ये भगवान जैसे हम कहते हैं ना, भगवान का नाम सुना है लेकिन हाँ देखा नहीं है। वो कहने लगी हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने बहुत सुना है कि ये बहुत एक पावरफुल शक्ति है और अव्यय है, यानी कि ऑल परवेडिंग है और हमेशा रहती है और अनित्य है, लेकिन सॉरी हमने देखा नहीं है। तो क्यों ना तुम एक बहुत बड़े ऋषि मुनि से जाके पूछो। लेकिन वो ऋषि मुनि रहता कहाँ है, छोटी मछली ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है, हमने खुद नहीं मिले हैं उस ऋषि से, और एक काम करो तुम समुद्र में चली जाओ, समुद्र में जाके तुमको वो ऋषि मिल जाएंगे। तो दिस लिटिल फिश वॉज नॉट एबल टू गिव अप इट्स तृष्णा, इट्स पैशन। ये नहीं था कि उसका अध्यात्म जो था टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ, उसका एक पास टाइम नहीं था, एक आइडल क्यूरियोसिटी नहीं थी, एक लेजी पास टाइम नहीं था। वो बोली आई हैव टू फाइंड आउट, दैट इज बिकम द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो वो उसने और तप किया, क्योंकि आसानी से तो नहीं जा सकते रिवर से ओशन तक, तो बहुत दिनों तक तप किया और फाइनली शी लैंडेड इन द ओशन। जैसे ही वो ओशन में गई, एकदम से ओशन का, समुद्र का नमक उसके आंखों को जलाने लगा, यानी कि इट वॉज सो हार्ड फॉर हर। पर उसने बोला नहीं, आई नो इट्स हार्ड, तपस्या इज हार्ड, बट आई हैव टू फाइंड आउट। ऐसे करते करते उन्होंने उसको एक बहुत बड़ी मछली मिली एक दिन। उन्होंने कहा आप क्या, आप ऋषि हो? उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ, मैं बहुत दिन से, मैं हजारों साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने बोला कि आई एम लुकिंग फॉर वाटर, मैंने सुना है कि वाटर नाम का कुछ होता है, आई एम लुकिंग फॉर दैट। तो ऋषि ने कहा वो ऐसी चीज है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हाँ वो सर्वत्र है, अत्र है, तत्र है, सर्वत्र है, अव्यय है, अनादि है, इटर्नल है, लेकिन मैंने डीप मेडिटेशन में उसको महसूस किया है। आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स, वो शब्दों का कि वो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो एक काम करो, तुम एक लहर के ऊपर लेट जाओ और उस लहर को जहां चाहती है वो लहर को ले जाने दो और मेडिटेट करो और महसूस करो सिर्फ उस लहर को। तो मछली एक लहर के ऊपर लेट गई और सिर्फ महसूस करती करती सोचने लगी क्या यही है, क्या यही है। उसको कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, बिकॉज मेडिटेशन वॉज गोइंग इन एंड आउट। और एक दिन क्या हुआ, वो मछली गॉट बीच्ड यानी समुद्र ने उसको तट पर जाके फेंक दिया। एक लहर ने उसको तट पर फेंक दिया। अब एकदम से मछली छटपटाई और छटपटाते हुए इधर उधर देखने लगी कि मैं क्या करूं, अब मुझे सांस नहीं आ रही, आई कैन नॉट ब्रीथ। तभी एक लहर आई और उस लहर ने उसको अपने गोद में लेते हुए वापस समुद्र में फेंक दिया। तब वो मछली बोली अब पता चला ये वाटर है, ये पानी है, पानी अब मुझे पता चल गया क्या है। तो मछली का विडंबना क्या थी? दैट इट वॉज स्विमिंग इन द सेम मीडियम विच इट वॉज लुकिंग फॉर। वो मीडियम उसके इतने करीब था, हर तरफ था, दूर था, पास था, हर समय था, उसके सांसों में था, उसके गिल्स में था, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। So what do we need? वो सिर्फ पहचान नहीं पा रही थी। इसका मतलब क्या भगवान उनसे दूर थे? यानी कि पानी उससे दूर था? जी नहीं, पानी हमेशा था, लेकिन पहचानना मुश्किल था। In the same way, consciousness is everywhere. It's because of consciousness that we are able to express ourselves.
to be able to write poetry, to be able to love and to laugh and to experience, to be creative, to create beautiful things, to dream, to have aspirations, to help people, to be selfless, to make donations, make a difference in somebody's life. It is also the same consciousness which is powering us to do all kinds of things. या राग में या द्वेष में, गलत काम भी, लेकिन उसके लिए एक पावर चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक एनर्जी फील्ड. वो एनर्जी फील्ड हर तरफ है और हम कहते हैं कहाँ. तो अब बल्ब को हम देख के कह रहे हैं, अच्छा हमको लाइट दिख रही है, ओके ओके, आई कैन सी योर बॉडी, द बल्ब इज माई बॉडी. एंड उसको कह रहे हैं कि अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है. इलेक्ट्रिसिटी इज परवेडिंग थ्रू द बल्ब एवरीवेयर. इट इज इन एंड थ्रू. In the same way, consciousness is in and through us and around us. And we say, Bhagwan hai kahan? Jara praman to dena. And I am a scientist, you see. I am a Western scientist and I am very rationalistic. I am very practical. You have to show me proof. So proof is you. Proof to hum swayam hai. Because Ramakrishna Paramahansa se jab bola gaya tha, the scientist, I think it was Vivekanand ji who says, I want proof. I am a highly scientific minded person and you can't give me all this mumbo jumbo about Bhagwan and all. Give me proof. So Ramakrishna said, okay, give me proof that he is not. वो है नहीं. So Vivekanand ji started expounding his great theory, and you know he was a great orator and he spoke beautifully and he used logic, impeccable logic, to prove that there is no God. And Ramakrishna just gazed and gazed at him, and after some time with tears in his eyes, he said, मुझे तो तुम ही में भगवान दिखते. So Bhagwan is in us, around us, everywhere. What is the proof? The proof is you and I. So he's saying, Yo mam jamana nadim. Who amongst us mortals, whoever knows me as unborn, as beginningless, as all-pervading, knows me. And the one who knows me, sarva papai pramuchyate, is beyond pap. Now pap has to be defined, because pap here doesn't simply mean burning in hell. Pap means Agyan. Agyan, why? Because if we don't know the truth, we are going to suffer, and therefore Agyan relates to Pap. But Bhagwan has something more to say about himself. He says, because he has already said, I am Sarva Loka Maheshwaram. I am in all the fields. Yes, in all the fields of your own experience. यही तो भगवान वर्स नंबर 4 and 5 में बताते हैं कि आपका हर एक्सपीरियंस जो है, आपका इंटेलेक्ट एंड विजडम. रामकृष्ण सेड टू विवेकानंद जी, ये विजडम और ये इंटेलेक्ट एंड दिस ब्यूटी एंड ऑफ योर स्पीच, यही तो भगवान है. इसके बिना आप कुछ कह सकते थे, आप कुछ बोल सकते थे? नहीं. तो therefore भगवान says in verse number 4, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावः भयम चा भयमेव च. आपका इंटेलेक्ट, your wisdom, your non-illusion, your forgiveness, ability to forgive, your truth, your self-restraint. Shama means self-restraint. Your calmness, your happiness, your pain and your birth and death, your fearlessness are all the fields of experience. ये experiences experience करने के लिए है तो कोई awareness चाहिए ना. Experiencer, तो वो experiencer is consciousness. Otherwise तो केवल एक जड़ body है जिसमें atoms and molecules and blood and flesh and bones हैं. तो blood and flesh and bones and molecules and atoms क्या experience कर सकते हैं कोई चीज? Impossible. Therefore, you are sentient, which means that you are that conscious principle, that awareness or that conscious principle. You can call it Bhagwan if you like. And matta eva pritak vidhaha, the one who knows me in my basic quality of consciousness, knows me meaning Paramatma or Krishna,
He will not anymore be enchanted by this petty small little world. कि अरे this world is so enchanting and so attractive. If you know me, how can you be attracted by the petty things? If you have seen the quality of pure diamond, are you going to be attracted and go and start collecting small little plastic baubles in a small little गांव का मेला? No, I have seen the quality of diamond. अब मैं plastic baubles लेने गांव के मेले में क्यों जाऊंगा? That's what Bhagwan is saying. If you know my quality of awareness, you will not be enchanted by the world. गांव के मेले से याद आया, and I'm going to end with that story. गांव के मेले में एक बार एक राजा ने कहा कि मैं डिस्गाइज में आऊंगा, मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए. आई नीड समवन टू टेक ओवर फ्रॉम मी, बट द मैन हु विल टेक ओवर फ्रॉम मी इज द वन हु कैन रिकॉग्नाइज मी इन द मेला. मैं तो डिस्गाइज में रहूंगा, जो मुझे इस मेले में पहचान लेगा वो मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा. तो फिर बहुत बड़ा मेला सजाया गया, एंड देयर वर सो मेनी, द फेरिस व्हील एंड सो मेनी अट्रैक्शंस एंड फूड एंड लाफ्टर एंड गेम्स एंड राइड्स. अरे बहुत भव्य मेला सजाया गया. सब लोग आने लगे कि मुझे उत्तराधिकारी बनना है. लेकिन उस भीड़ भाड़ में हजारों लोग को क्या हुआ, हम और आपकी तरह वो उस अट्रैक्शंस में बहने लगे और मैकडोनल्ड में कहीं खा रहे हैं, कोई फेरिस व्हील का और कोई कॉटन कैंडी और कोई प्राइजेस जीतने के लिए छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शूटिंग रैलीज, और उसमें सब में फंसने लगा और भूल गया अरे मैं यहाँ आया किस लिए था. वो भूल गए. हजारों लोग आए और मेला भरा हुआ था, लेकिन जो मेन पर्पस था मेले का ना, जैसे हम भूले हुए हैं, हम इतनी चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं दुनिया में, असल में हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में वो भूल गए. द अट्रैक्शंस ऑफ द मेला आर सो मच. सब लोग भूल गए अपना असली, आए तो थे विद दैट एम्बिशन, बट अपना वो भूल गए, अपना ध्येय, द पर्पस. एक आदमी वहां घूमता घूमता, वो भी उन सब अट्रैक्शंस में से गुजर रहा था, और कहीं लोग बुला रहे थे आओ ये खरीदो वो खरीदो, ये मजा लो वो मजा लो, द बेस्ट फूड, द बेस्ट क्लोथ्स एंड द बेस्ट डांसेस. इन सब आवाज में बहुत बहुत शोर शराबा था. उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, दूर कहीं घंटी की आवाज थी, हो सकता है मंदिर की घंटी थी. उसने एक बार उस घंटी को सुन लिया और उसकी ओर बढ़ने लगा. That I want to find out what is the source and where is this sound coming from. And चलते चलते वो पहुंच गया एक छोटे से गांव के अंदर ही था वो मेला भी और वो मंदिर भी, और वहां घंटी हल्के से बज रही थी हवा के कारण. And he stopped there and he looked around, and behind one of the pillars of the temple he found one quiet figure. एकदम साधु जैसा दिख रहा था, हाफ नेकेड, फकीर जैसा. उसने बोला, उसके पास आया और उसको, वो जानता था कि राजा तो नहीं हो सकता, एकदम फकीर जैसी शक्ल है, लेकिन फिर भी उसने कहा क्या आप राजा हैं? और वो राजा उठकर बोला तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि इतने बड़े मेले में केवल और केवल तुमने मुझे पहचान लिया. ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि दैट मैन हु वाज looking for the king had his single pointed aim, and his मन and बुद्धि एकाग्रता के साथ सततम नित्य युक्त, एकदम युक्त होके उसने सिंगल पॉइंटेड माइंड रख के कहा कि मुझे पहचानना है. एंड देयरफॉर इतने शोर शराबे में भी जो हमारे साथ हो रहा है, कहीं गाड़ियों का सेल है, कहीं अमेज़न का सेल है, कहीं आना जाना, रिलेटिव्स, फॉरेन ट्रिप्स, कितना शोर है. लोग एफबी पर आ जाते हैं कि अरे तूने ऑस्ट्रेलिया में वो जगह नहीं देखी, इतना शोर, और हम लग पड़ते हैं कि अरे मुझे भी प्लान करना है. एंड आई स्टार्ट प्लानिंग माई ट्रिप टू सम प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया विच समबडी एल्स एंजॉयड थ्रू हिज ग्रोस सेंसेस. उसने इन अट्रैक्शंस की शोर शराबा को भी सुनते हुए अपनी एकाग्रता, नित्य युक्ता और नहीं छोड़ा कि व्हाट इज माय पर्पस, आई विल फाइंड इट. और वो जो मंदिर की घंटी थी ना, वो मंदिर में, वो मेले में ही बज रही थी, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दी.
तो इन्होंने सुन लिया. दिस इज अ सिंपल स्टोरी एंड ऑल्सो ऑफ द फिश. द फिश ऑल्सो इज माई फेवरेट स्टोरी कि वी आर स्विमिंग इन द मीडियम ऑफ अवेयरनेस, इन द मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड हमको इतनी जरूरत होती है, हम कहते हैं डज भगवान एग्जिस्ट? एंड द आंसर इज अच्छा, डज यूनिवर्स एग्जिस्ट? पूछो जरा. Yes, it exists. Then who is the dharya? Who is the dharyate jagat? Who is holding it? And question पूछते हैं, अच्छा बताइए तो, where is भगवान? Answer is, tell me where he is not. वो कहाँ नहीं है ये तो बताइए पहले. And that is the true nature. He is the cause of everything, every feeling that we are going through, and he is the sustainer of everything. And everything, of course, needless to say, will merge back into him. Therefore, everything that I am experiencing, this whole field of experiences in my inner world, outer world तो छोड़ ही दीजिए प्रकृति का, my inner world में वर्स नंबर 5 में कहा है क्या क्या चीजें चलती रहती है. अहिंसा, समता, तुष्टि ही. अहिंसा है नॉन वायलेंस, समता इक्वानिमिटी, एंड तुष्टि कंटेंटमेंट, तपोदानम यशो यशः ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम, इनफेमी, ये सब हमारी जिंदगी में है. भवंती भावा भूतानाम, ऑल दीज आर क्वालिटीज विच आर अराइजिंग इन मी, बट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मत्त एव पृथक विधाः, फ्रॉम मी, फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम दैट ओनली वन कॉन्शियसनेस. तो आप जितना भी कंप्लीट फील्ड, पूरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इनर वर्ल्ड, बुद्धि वर्ल्ड, मन वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड देख लीजिए, द कॉज is only one. Otherwise, it cannot be held together. This entire universe is held together, millions of stars and galaxies, and they are moving in a certain kind of order without crashing into each other. And our body and our organs know what is the each one's function. हर एक एटम, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, हर एक एटम और मॉलिक्यूल को इतनी जानकारी है कि मेरा कार्य क्या है, what I need to do. Where is that intelligence coming from? Bhagavan says, I am that hidden conscious principle or intelligence. You can call it intelligence of the world or conscious principle. Where am I? Everywhere. Without that you can't exist. You can't be speaking. Without that हमारे श्रोता नहीं होते, हमारे वक्ता नहीं होते. I wouldn't be speaking. You wouldn't be listening. We wouldn't be contemplating. मन में जो अभी contemplation चल रहा है about some higher truth, वो contemplation कैसे होगा? Brain is just a piece of matter. Matter में इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस कहाँ से आया? मैं वही तो हूँ. भगवान इज ट्राइंग टू से मैं वही तो हूँ. हाउ कैन यू से वेयर एम आई? एंड सो द एंटायर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एज सीन इन चैप्टर 5 इज सर्वलोक महेश्वरम. ओनली एंड ओनली कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. बट हाउ डू आई रीच इट? इट्स लाइक द फिश सेइंग मुझे पानी में पहुंचा दो. रीच इट नहीं, recognize it is a better word. How do I recognize it? ये हम देखेंगे अगली बार.